Today we continue with our chapter that is working with functions. In last lecture we learned about what is function, what are the types of the function, defining the function in Python, structure of function, and now need of function, and now we are learning passing parameters. So there are three methods for passing the parameter. First one is positional argument, second one is default arguments, and third one is the keyword arguments. First of all, before passing the parameters in any of the function, it is compulsory that the parameter passed at the time of definition and the time of calling must be same. जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पे लिख रहे हैं, उतने ही आपको पैरामीटर्स उसके कॉलिंग के टाइम पे भी लिखने ज़रूरी है. एग्जांपल, अगर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, then at the time of the function definition, then we should have to pass 3 values at the time of calling. So these are the 3 passing parameters. Let's start with the first one, that is positional and the required arguments. Let's have an example. Def check a comma b comma c. Okay, so this is a function that is function name is check and we are passing, this is a function name. Okay, and these are the parameters. So this is the keyword that we are using for defining a parameter. So we are having a function def check abc. Okay, this is our function name. We pass 3 arguments here, so at the time of calling the function we have to pass again 3 parameters, right? So this is a function and this is the body of the function. Okay, body of function. Now calling. So calling of this function is like check 3 5 7. Okay, so when we pass 3 parameter and the definition of the function, so we have to pass the 3 parameters while calling, because value 3 is going to assign to a, value is 5 going to assign to b, and 7 is going to assign to c. So this is the method कि हर वैल्यू हर एक पैरामीटर को जाके असाइन होगी, इसीलिए नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होने चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. So this is all about positional argument. Next one is the default argument. If we set the value of one parameter as default, so we are using default arguments. So in this case, let's have an example. Def interest principal time rate equals to 0.10, and this is column. Okay, in the end of the function we have to mention the columns. So if we are having a function definition like this, it means the rate value is 0.10 every time. अगर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, okay, this is the body of function again. Okay, so this is function definition. Okay, function definition. So at the time of calling we have to write interest so time is
like this. It means third argument is missing here. So 500 is going to assign to the principal and 3 is going to assign to the time, and the value of the third parameter must be same as 0.10. सो फॉर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर आपको किसी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट करनी है कि अगर आप वो आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू ये रहेगी. मीन्स आपको पता है कि आपका रेट 0.10 ही लगना है हर बार, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया. बट अगर इस फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे मैं लिखती हूँ इंटरेस्ट $0.15. So this time 500 is your principal, this is your rate, and this is your time and this is your rate. अगर हमने तीनों वेरिएबल्स पास किए हैं तो फिर वो रेट पहले वाला बाय डिफ़ॉल्ट रेट नहीं लेगा, वो जो न्यू रेट पास करेंगे हम वो लेगा. बट इन केस अगर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं और यहाँ नहीं करते हैं कॉलिंग के टाइम पे, तो वो ये वैल्यू लेगा. बट अगर आपने वैल्यू पास की है तो वो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा इंस्टेड ऑफ दिस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ कीवर्ड नेम्ड आर्ग्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट इज़ अ keyword arguments. So what is in keyword arguments? Having a positional argument after keyword argument will result into error. इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. Keyword arguments are the named argument with assigned values being passed in the function called statement. Let's have an example. Again I am taking interest. Okay, I've noted down in short form. This is a principal equals to 2000, the time equals to 2 year, and rate equals to 0.10. Okay, so in this we have already passed the value. Principal as 2000, time is 2 years, and rate equals to 0.10. दिस फंक्शन इज़ वैलिड. ओके, ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा, इट बिकेम वैलिड. कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार प्रिंसिपल पहले टाइम बाद में रेट बाद में लिखें, क्योंकि जब हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स के सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं. सो प्रिंसिपल इज़ 2000, टाइम इज़ 2 एंड रेट इज़ 0.10. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट. The next topic is multiple argument type together using multiple argument together. ठीक है, मान लीजिए आपको एक फंक्शन है जिसमें आपको तीनों तरीके की वैल्यूज़ पास करनी है. इट मीन्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने हैं. सो पाइथन अलाउ यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट टाइप इन अ फंक्शन कॉल. लेट्स कंसिडर अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट. लाइक इफ यू राइट इंटरेस्ट 5000, this is calling not definition, because if it is definition, अगर ये definition होती तो मैं इसके आगे def लिखती. ओके, सो दिस इज़ कॉलिंग. कॉलिंग क्या है, हमने फंक्शन का नाम लिखा है, फंक्शन का नाम है इंटरेस्ट, उसमें वैल्यू पास की है 5000 और टाइम इक्वल्स टू 5. सो द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज़ 5000 रिप्रेजेंटिंग अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल में एक वैल्यू पास की है जो चेंज हो सकती है. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हमने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो आप कॉलिंग के डेफिनेशन के टाइम पे देंगे वही आपको कॉलिंग के टाइम पे देना है. कॉलिंग के टाइम पे उस फंक्शन की आपको वैल्यू देनी है. लाइक अगर हमने प्रिंसिपल लिया था तो प्रिंसिपल की वैल्यू देंगे, दे दी. थर्ड नेक्स्ट वन इज़ t इक्वल्स टू 5. तो ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने थर्ड वैल्यू पास नहीं की है ना, दैट इज़ वी हैवंट पास द रेट. तो जो आपका रेट होगा वो किस में आएगा, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि रेट की वैल्यू हम पहले ही मेंशन कर चुके थे, दैट इज़ 0.10. एंड टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 5. पहले ही हम मेंशन कर चुके हैं कि t की वैल्यू 5 ही रहनी है. इट इज़ योर कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट.
So now rules for combining all the three types of argument. So rules for combining all three type of argument. First one is an argument list must first contain positional argument followed by the keyword argument. पहले आपको क्या देना है, पहले आपको देना है positional argument, that is the value of the argument. सेकेंड आपको देना है keyword argument, यहाँ पे हल्का सा मिसिंग है, इसके बाद आएगा arguments followed any keyword. just a second. Keyword argument. Okay, next is keyword argument should be taken from the required argument preferably. You cannot specify a value for an argument more than once. आप एक बार से ज़्यादा उसकी वैल्यूज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते. फॉर इंस्टांस एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. Okay, this is our example. Here we are taking a function. So this is our example. We are taking a function definition interest. Okay, this is our function name. This is a keyword. अब बार बार बता रही हूँ ताकि ध्यान रहे. ठीक है. Keywords are the values whose are predefined that are having predefined meaning in Python library. Okay, कल बताया था आप लोगों को, मैसेज भी किया था कि what are keywords. So in keywords we are in this function we are passing 1 2 3 4 arguments, that is principal, cc, time and rate. Okay, and we are returning a value, that is principal into time into rate. Return means this function is returning some value and the value is principal multiply by time multiply by rate. इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू रिटर्न होगी. मतलब अगर आपने कोई भी फंक्शन कॉल किया है, अगर हमने कहीं पे इस फंक्शन को कॉल किया है तो जो वैल्यू देगा ये फंक्शन वो ये होगी. So it is clearly from the above function definition that the value of the parameter principal and cc can be provided either as positional argument or as keyword arguments, but these value cannot be skipped from the function call. मान लीजिए अगर हमने फंक्शन डेफिनेशन ऐसे दी है तो प्रिंसिपल और सीसी की वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी बिकॉज दे आर द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. These are the positional arguments and the value of time and rate are optional. आप इसकी वैल्यू positional arguments के थ्रू दे सकते हैं या फिर keyword arguments के थ्रू दे सकते हैं. Here are some function call statements and बताया जा रहा है कि फंक्शन कॉल लीगल है, इलीगल है, क्यों और उसके पीछे रीज़न. फर्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3000, सीसी इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये लीगल है क्योंकि है नॉन डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड एज नेम्ड आर्ग्यूमेंट. हमने जो वैल्यूज़ हमारे दिए थे पोजिशनल वैल्यूज़, हमने उनकी वैल्यू को पास किया है with the help of keyword arguments. They are also known as named argument. Named argument means keyword argument. Okay, next is interest rate equals to 0.12, principal equals to 5000 and cc equals to 4. ये भी लीगल है because keywords argument can be used in any order. For the argument skipped देयर इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू. हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं तो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यूज़ हैं दे में चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट 5000, 3, रेट इक्वल्स टू 0.05. So this is 5000 and 3 are the positional arguments and rate equals to 0.05. It can be a default or keyword argument. ठीक है. नेक्स्ट इंटरेस्ट इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू 0.05, 5003. जब हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं 5000 और 3 यहाँ पे जो है दे आर द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. सो हम उस टाइम में सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. हम सीक्वेंस चेंज कब कर सकते हैं, जब हम कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, मीन्स जब हम उनको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं एट दैट टाइम. ओके,
नेक्स्ट अगेन इंटरेस्ट 5000, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3, CC इक्वल्स टू 2। मल्टीपल वैल्यूज़ प्रोवाइडेड फॉर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 भी दे दी है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू यहाँ पे 300 भी दे दी है। तो अगर हम एक ही वैल्यू को, एक ही पैरामीटर को दो वैल्यूज असाइन करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो ये भी इलीगल है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरेस्ट 5000, प्रिंसिपल अगेन सेम कंडीशन। प्रिंसिपल जो है वो कोई भी वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल आप वही लेंगे जो एक बार नाम दे रहे हैं, हर बार वही नेम यूज़ करेंगे। इंटरेस्ट 500, टाइम इक्वल्स टू 2, रेट इक्वल्स टू 0.05। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट CC इज मिसिंग। ठीक है, क्योंकि जब भी हम वैल्यूज़ पास करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिंग, तो वो वैल्यू डेफिनेशन में जाके चेक होती हैं कि वो वैल्यू वहाँ से मैच हो रही है या नहीं हो रही, तभी कोई ऑपरेशन फर्दर उस पर वर्क कर पाता है। Here is an example of okay, here's a program for finding the interest. Okay, so you have to find the interest. We are having a small program to calculate the simple interest using a function interest। ठीक है, आपको एक फंक्शन क्या यूज़ करना है, इंटरेस्ट नाम का। सो हम आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, ओके। इंटरेस्ट इज द फंक्शन नेम, सॉरी, interest is f function name, principal, time, rate are the parameters। ठीक है, पैरामीटर्स हो गए। एंड जो कैलकुलेशन हो रही है या जो इस फंक्शन का काम है वो क्या है, ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। सो हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे वो इन तीन पैरामीटर्स में जाके लगेंगे, असाइन होंगी। उसके बाद ये कैलकुलेट होगा, एक ऑपरेशन, एक इक्वेशन कैलकुलेट होगी और वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए ये फंक्शन की कॉलिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है ना। दिस इज़ द फंक्शन कॉलिंग। सो जब यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या काम करेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कर देगा। सो लेट्स चेक द प्रोग्राम। प्रिंसिपल फ्लोट इनपुट एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके प्रिंट स्क्रीन पे क्या आएगा, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया 6700। नेक्स्ट प्रिंट आएगा सिंपल इंटरेस्ट विद डिफ़ॉल्ट ROI एंड टाइम वैल्यू इज़। इट मीन्स हमने टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI इज़ टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू हमने पहले से ही गिवन दी है, तो हमने वो यूज़र को बता दी। नेक्स्ट इज़ SI इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन एंड दिस इज़ द वैल्यू। सो प्रिंट रुपीज़ SI, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फ्लोट। एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मेंशन करते हैं तो क्या लगेगा, 8 लगा। अगर मेंशन नहीं करते तो क्या लगता, 0.10। नेक्स्ट टाइम इन, एंटर द टाइम इन ईयर्स। अगर ईयर मेंशन किए हैं तो 3 लगेगा। अगर यहाँ पे इंसान मेंशन नहीं करता या यूज़र मेंशन नहीं करता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, 2। नेक्स्ट इज प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट विद योर प्रोवाइडेड ROI एंड टाइम वैल्यू इज़। ठीक है, एक और चीज़ स्टूडेंट, जब यहाँ पे आया था सिंपल इंटरेस्ट विद डिफ़ॉल्ट ROI एंड प्रिंसिपल इज़, हमने यहाँ पे लिखा था इंटरेस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंट वैल्यू हुई है वो वैल्यू होगी जो यहाँ पे पास की गई। यहाँ पे क्या वैल्यू पास की थी, 6700। सो इट बिकेम SI1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, और इसमें वैल्यू गई 6700। ठीक है, जब 6700 आपकी वैल्यू गई है तो सिंपली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल होगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो कैसे होगा, जब हमने लिखा इंटरेस्ट 6700 तो ये किसको कॉल करेगी स्टेटमेंट, ये यहाँ जाएगी। यहाँ जाते ही 6700 की मल्टीप्लाई करेगी 0.10 से और टाइम लेगी 2। तो जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी आपकी 1340। नेक्स्ट जब आपने टाइम दिया, यहाँ पे आपने ROI मेंशन किया एंड आपने टाइम मेंशन किया है ईयर्स में। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा,
ओके, दिस इज़ द मैथड। आपने क्या किया, प्रिंसिपल जो यूज़र ने दिया था दैट इज़ 6700, टाइम 3 years एंड ROI इज़ 8 डिवाइडेड बाय 100, सो प्रिंट रुपीज़ SI। अब आपकी वैल्यू, अब आपका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो गया है, 1608। यू हैव टू नोट डाउन दिस प्रोग्राम इन योर नोटबुक। ओके, so our next topic is returning values from function. We are having two methods for returning a value from a function. First one is function returning some value, that is non-void functions, and function returning any value, that is void function. So first one is function returning some value. In the function definition, if we write return and some calculation or expressions, then that value is returned by the function. Like in previous function definition, we have written interest, return principal into rate into time, so that value is returned by the function. So these functions are known as functions returning some value, that is non-void functions. Okay, the function that returns some computed result in terms of a value fall in this category. The computed value is returned using the return statement as per the syntax. So आपका syntax क्या है, return and the value. Okay, here's a small example. This is the example. Def, this is the keyword, this is a function name, and these are the arguments or parameters. Arguments or parameters. ठीक है, next is s equals to x plus y. This is the expression that is going to computed by the your function. ये जो वैल्यू है s इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये वो एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा फंक्शन के थ्रू और फंक्शन इसको पास कर देगा, रिटर्न s. ओके, सो फंक्शन वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, s की वैल्यू रिटर्न करेगा. दिस इज़ फंक्शन कॉलिंग. ओके, हेयर वी आर कॉलिंग आ फंक्शन लाइक रिजल्ट इक्वल्स टू सम 5 + 3. तो 5 और 3 की वैल्यू किसको जाएगी, 5 की वैल्यू असाइन होगी x को और 3 की वैल्यू असाइन होगी y को. तो s इक्वल्स टू 5 + 3 दैट इज़ 8. तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, योर रिजल्ट विल बिकेम 8. ठीक है, दिस इज़ नोन एज फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज. नेक्स्ट वी आर हैविंग फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू. ठीक है, सो the function that performs some action or do some work but do not return any computed value or final value to the caller are called void functions. ठीक है, ये वो फंक्शंस होते हैं जिसमें कंप्यूटेशन पार्टिसिपेट नहीं करती है, और अगर करती भी है या फिर कुछ भी ऑपरेशंस होते हैं बट वैल्यूज़ को हम रिटर्न नहीं करते हैं. लेट्स हैव अ एग्जांपल. इसमें आपका रिटर्न वैल्यू इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगी. मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है डेफ ग्रीट. ठीक है, दिस इज़ कीवर्ड, दिस इज़ योर एफ नेम दैट इज़ फंक्शन नेम, दिस इज़ द फंक्शन बॉडी. फंक्शन बॉडी में क्या गिवन है, प्रिंट हेलोज. ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एट दैट टाइम जो ये वैल्यू प्रिंट करेगा दैट वो होगी हेलोज, मतलब कोई कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक और फंक्शन है डेफ कोड. ठीक है, इसमें है गुडनेस काउंट्स. ठीक है, in Python we are having 4 possible combination of functions. First is non-void function with any arguments, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ना ही इसमें आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं. सेकेंड वन इज़ नॉन वॉइड फंक्शन विद सम आर्ग्यूमेंट्स, मतलब वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है बट कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है. वॉइड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, वैल्यू रिटर्न होगी बट उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है. वॉइड फंक्शन विद सम आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इसमें वैल्यू रिटर्न होगी और क्या कहते हैं, फंक्शन में आर्ग्यूमेंट भी पास किया गया है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़. ठीक है, दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुमारो. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू स्टूडेंट.